when we have talked about the typhoid in the last class, so there was a lady which by profession she was a cook, and her name was Mary Mellon, but later on his name was given Mary Mallon. Yes, absolutely correct, Yash. But later on, her name was given as Typhoid Mary because she was a carrier for the typhoid. वो carrier थी और वो cook थी. तो by the food that she used to cook, she transferred the diseases for several years. जिधर भी जिसके घर पे भी जाती थी, cooking करती थी, वहाँ लोग बीमार पड़ते थे. पता होता था कि that is the typhoid. But बहुत सारे experiments, research होने के बाद पता चला कि the lady that is usually a cook jo thi by profession, she was a carrier for the typhoid. Okay, now along with these certain diseases, ma'am, your video pause. अभी भी pause है क्या? No, ma'am. No, ma'am. Apart from those bacterial diseases, today we will also learn some other bacterial diseases that has not been mentioned in our book, in our NCERT in detail, but yes, the names are given there. Bulbanic fever का नाम दिया हुआ है, diphtheria का नाम दिया है, dysentery का नाम दिया है. So there are certain diseases which are being transferred to the human, although they are the bacterial diseases, but are being transferred to the human through animals. तो लेट हैव अ चेक. मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आपको वो चीजें इजीली दिखें. और जस्ट अ मिनट. इज इट विजिबल? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Some other bacterial diseases that we have to learn here in this chapter. The first one that is mentioned here is your diphtheria. And diphtheria diagnosis of the disease is done, and the pathogen which is usually carry this disease is your Corynebacterium diphtheria. And what are the symptoms? Yes, it's the sore throat, hoarseness, difficulty in breathing, and the mode of spread and incubation period is, it's but obvious है कि अगर यहाँ पर sore throat है, difficulty in breathing है, then it may be spread by the droplet infection. Yes, the vaccine. Yes, sorry for the interruption. Yes, so we are talking about the diphtheria. Yes, the vaccination is available. That is your DPT vaccine. DPT vaccine जो है ये early years से DPT vaccines दिए जाते हैं. Infants को, newborn babies को DPT के vaccines दिए जाते हैं. Apart from diphtheria, the other important disease is your pertussis, which is also known as whooping cough, because the cough that is being produced by the infected person produces a whooping sound. बहुत ऐसे whooping sound produce करता है. And yes, this is also a bacterial disease which is caused by Bordetella pertussis, and it's also being transmitted through the droplet infection only. And yes, the DPT vaccine is a multiple vaccine that is being given against three diseases, three deadly diseases, that is diphtheria, pertussis, and tetanus. Tetanus is also known as the lockjaw disease. It's also being transmitted through the bacteria, and the bacteria that is responsible for the transmission is your Clostridium tetani. And basically it leads to a spasm of muscles of the jaw and the face, severe pain, and often fatal. But some diseases ऐसे होते हैं, tetanus के बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा explain करना चाहूंगी. Some diseases are like that, in which you have to immediately give the antibodies or the anti-serum that is being available in the market, that is your passive immunization. Because अगर हम उनको treat करने में late करते हैं, delay करते हैं, तो it may be dreadful. So in case of the tetanus, when you are smaller kids, तो क्या होता है, बच्चे खेलते कूदते बहुत ज़्यादा चोट वोट लगा लेते हैं इधर उधर. तो हम मम्मा हमेशा पूछती है, बाबा हमेशा ये पूछते हैं कि किस चीज से चोट लगी है या फिर ये कैसे कट हुआ है. एंड दे इमीडिएटली गेट द इंजेक्शन, दैट इज द ATS इंजेक्शन, दैट इज योर एंटी टेटनस सीरम. तो व्हाट इज वैक्सीनेशन हियर? आई विल स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना, पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं. हियर कम्स द टू टर्म्स. वन इज योर वैक्सीन
and the other is one your anti-serum. As I just discussed that in some diseases, some deadly diseases, for example, in the case of the tetanus, as well as when there is a snake bite, ऐसे diseases में हम wait नहीं करते कि हमारा immune system active होगा, अपना खुद का antibodies बनाएगा और हमें recover करेगा. We look for the immediate action, and when we look for the immediate action, we will go for the anti-serum treatment. For example, in the case of tetanus is the ATS injection. Injections हम provide करते हैं. तो what is the difference between vaccine and anti-serum? Anti-serum और vaccine में क्या difference होता है? As I told that anti-serum gives you passive immunization. Passive immunization. That means in this case the antigen is knowingly being injected in the animals in order to produce the antibodies. हम desperately हमें वो antibodies extract करनी है उनके body से, इसलिए हम उनको वो antigen inject करते हैं, and when the antibodies are being produced, we extract it out and sold it in the market in the form of the injections, and it basically being considered as a passive immunization. We will learn about what is immunization. वहां पर फिर आएगा active and passive और मैं आपको अच्छे से और बताऊंगी. But in case of vaccination, is vaccination an active immunization or the passive immunization? What do you think? Yes, Vedant, is vaccination, the vaccine that we are getting these days, कोविड के वैक्सीन ले रहे लोग, तो वैक्सीनेशन जो है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है या पैसिव इम्यूनाइजेशन है? All of you can write it in the comment box. Passive maybe. Passive maybe. Why it's passive? What is? क्योंकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो इनेट होती है ना, मतलब इनबॉर्न. Okay, चलो मान ली तुम्हारी बात. अच्छा मुझे ये बताओ, what is vaccination? ये जो वैक्सीन होता है जो हम इंजेक्ट करते हैं ना पर्सन, अभी हम कोविड की बात करें क्योंकि ये उसका टाइम चल रहा है, ये पैंडेमिक है और हम 1.5 साल से इस चीज को फेस ऑन कर ले, इसलिए वी ऑल आर अवेयर अबाउट द कोरोना वायरस, जिसके अगेंस्ट अभी इम्यूनाइजेशन ड्राइव चल रही है और लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं. तो इज वैक्सीनेशन एज वेल एज द एंटी सीरम बोथ आर पैसिव इम्यूनाइजेशन और देयर इज अ चेंज, या फिर दोनों में डिफरेंस है? सोचो, थोड़ा सा सोचो, देखते हैं कौन बताता है. एक हिंट देती हूँ, यश का आंसर सही है. एक हिंट देती हूँ, ये जो एंटी सीरम है, आपने कभी सुना होगा कि जब ये टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए वी गो फॉर द एंटी सीरम इंजेक्शंस, इट हैज अ शॉर्टर ड्यूरेशन. ये जो एक्टिव होता है, ये जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इट्स फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है, शॉर्टर duration. Sometimes it's being recommended by the doctors. If you have taken the tetanus injection 6 months ago, then you, and again if you feel that something is wrong with you, then you have to again take the injection. ATS का injection फिर से लेना पड़ेगा because it gives an immunization for a shorter period of time. But whenever we talks about the vaccination, we talks about the vaccine, it gives एक्टिव इम्यूनिटी फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड. ये हमें एक्टिव इम्यूनिटी देती है जो लॉन्गर पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, जब भी बेबी बॉर्न होता है, इन्फेंट्स होते हैं, तो 2 years तक some injections, booster doses at the age of the 5 and the 10 years also, they are being given to the kids. Why? To provide the immunization. Vaccination हम करते to prevent them from those diseases. तो वो क्या longer duration के लिए है या सिर्फ वो 5 years और 10 years तक ही हमें prevent करते हैं? It's not like that. ये हमें जो हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, जब भी हम डेड और एटेन्यूएटेड एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में थ्रू द वैक्सीनेशन ड्राइव, इम्यूनाइजेशन, दे accelerates our immune system in order to synthesize the antibodies against that specific antigen.
और ये हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसको पॉक करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है. यस, दिस इज समथिंग विच इज अ पैथोजन, विच इज अ foreign particles. Now when they enter our body, when the foreign particles enter our body, they trigger our immune system. So the antigens that are being given through the vaccination, they are basically, they are the triggers. They trigger our immune system, but वो dead होते हैं, attenuated होते हैं, and because of that only they are not capable of causing the infection. क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जो उनके पास डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, तो वो हमें डिजीज कॉज नहीं करते, बट दे प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स. कभी कभी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी जब ये कोरोना के वैक्सीनेशन हो रहे तो आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को फीवर आ जा रहा है, बहुत लोगों को मस्कुलर पेन्स हो रहे हैं. तो दिस इज just the symptoms, but not exactly the diseases, because the antigens that are being given, that are being injected through the vaccination, they are attenuated मतलब कि वो लिविंग नहीं है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते. डिजीज कॉज, अभी ये हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, डिजीज कॉज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को. सो योर वैक्सीन प्रोवाइड्स यू द एक्टिव इम्यूनिटी, active immunity by triggering your immune system, by triggering your immune system, and it gives effects for the longer duration. लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसके इफेक्ट्स रहते हैं. बट जो ATS होता है, दैट इज बीइंग, द एंटीजन इज बीइंग इंजेक्टेड इन द एनिमल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. तो जो ये एंटी सीरम होता है वो इज बेसिकली द सीरम दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, जिसके बॉडी में हमने डेलिबरेटली जानबूझ के ये एंटीजन इंसर्ट किया है ताकि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. तो यहाँ पर मैंने दो चीजों का नाम लिया कि इन सर्टेन डिजीजेस वी कांट वेट, क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत डेडली हो जाते, इतना सीवियर अटैक हो जाता है कि वी कांट सेव द पेशेंट. सो यहाँ पे दो चीजें हैं, वन इज योर टेटनस एंड द अदर इज योर स्नेक बाइट. स्नेक बाइट के लिए भी कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, दैट इज योर स्नेक वेनम, दैट इज योर ATS, the serum that is extracted from the body. So this is the difference, and in both the cases we have to immediately go for the action and we give the ATS, that means the serum containing the antibodies, and it's an example of passive immunization. इससे बहुत बार question आए हैं, so you should remember this. Okay, clear to all of you? Yes, ma'am. Yeah, sure. Yes, ma'am. Now again I am sharing the screen. So your tetanus, which is also known as lockjaw disease, because ये हमारे muscles को, jaw को, face and jaws के muscle को affect करता है, severe pain होता है, and they are often fatal. यहाँ पर वुंड इन्फेक्शंस होते हैं. जो वुंड होता है, इसीलिए मैंने बोला जब भी कट हो जाते हैं खेलते कूदते या फिर घर में ही किसी रस्टेड आयरन से लग जाता है, तो मम्मा पापा थोड़े वरीड हो जाते हैं कि वी हैव टू गो फॉर द ATS इंजेक्शन, बिकॉज इट्स बीइंग स्प्रेडेड थ्रू द वुंड. इसलिए वुंड को बहुत जल्दी ऐसे एक्सपोज करके नहीं छोड़ना चाहिए, उसको एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाने चाहिए, उसको अच्छे से वॉश ऑन करना चाहिए, ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए in order to protect them from the infection. And yes, for the tetanus also the DPT vaccination is being given. So it's a triplet. 3 disease के लिए हम सिर्फ एक ही वैक्सीन यूज करते हैं, that is your diphtheria, pertussis and tetanus, और इसीलिए इसका नाम है DPT. And this is the very first vaccination that is being given to the inborn infants को दिया जाता है. Okay, now there is one more disease which is of the bacterial infection से होता है, and it occurs on the skin.
स्किन में लाइट कलर्ड के पैचेस दिखते थ्रू आउट द स्किन. आपने कभी किसी को देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि इसका स्किन इतना ज्यादा व्हाइट कैसे है, मतलब अल्ट्रा, मतलब क्या बोलूं. तो बेसिकली इट्स अ डिजीज विच इज लेप्रोसी एंड इट्स बीइंग कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. लाइट कलर्ड पैचेस ऑन स्किन, यस, और ये एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है थ्रू प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट, और इसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है. द अदर वन इज योर बैसिलरी डिसेंट्री. डिसेंट्री भी हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, नाम उसने लिखा है बट वहां डिटेल नहीं है. आई विल शेयर दिस चार्ट विद यू ऑल. बैसिलरी डिसेंट्री दैट इज कॉज्ड बाय सिजेला. इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल्स. एंड यस, डेफिनेटली एब्डोमिनल पेन है, ये हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड है, तो इट्स बीइंग कॉन्टेक्टेड थ्रू द फीकल ओरल रूट. एंड द इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरिएबल. किसी में बहुत जल्दी इफेक्ट दिख जाता है, किसी का 1-2 दिन टाइम लगता है. एंड यस, फॉर डिसेंट्री ऑल्सो देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल. Now, some of the diseases, some of the bacterial diseases are being transferred to the human beings through animals. And one of the most important of this is anthrax, which is caused by Bacillus anthracis. और ये कैसे cause होता है? Because of the spores of Bacillus anthracis is the source of the infection, and it's being transferred to the human being through the animals. एनिमल्स के बॉडी से ये हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, एंड द स्पोर्स जो होते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस के, वो इन्फेक्ट करता है. और ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग में 3 टाइप्स का इन्फेक्शन कॉज करता है. वन इज योर क्यूटेनियस एंथ्रेक्स विच इफेक्ट्स द स्किन. The second one is your pulmonary anthrax, which affects the lungs. And the third one is your intestinal anthrax, which affects the gastrointestinal tract. That means stomach as well as intestine, दोनों को ही affect करता है. तो basically depending upon the place where the bacillus के spores ने infection cause किया है, the anthrax is of 3 types: cutaneous, pulmonary and intestinal. Anthrax vaccination is available. Now along with this, ये ब्लैक डेथ जो प्लेग है, ये भी हमारे एनसीईआरटी में बल्बेनिक प्लेग के नाम से नहीं, प्लेग के नाम से मेंशन्ड है. एंड यस, दिस इज आल्सो बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द एनिमल्स, दैट इज द रैट फ्ली. रैट फ्ली से ह्यूमन में, मैन में ट्रांसमिट होता है, एंड रैट फ्ली इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ पैथोजेंस ऑफ द रैट्स. बल्बोना ब्यूबो, और इसका नाम जो है वो ब्यूबोनिक प्लेग इसको इसलिए कहते हैं. ब्यूबो का मतलब है यहाँ पे, फिर मैं स्टॉप कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ब्यूबोनिक प्लेग, it's also being transmitted to the man. मैन के बॉडी में ये ट्रांसमिट होता है. एक्चुअली ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिम्टम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं. सो बेसिकली कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स पूछा जाता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन पूछा जाता है. ओके, सो ब्यूबोनिक प्लेग, इट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू द मैन. Transferred. Is the board visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. And through rat flea. So basically ये ब्यूबोनिक प्लेग इसलिए बोला जाता है. प्लेग बहुत तरीके से होते हैं, एंड बेसिकली प्लेग जो है वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है. ब्यूबो, इट्स देयर इज अ वर्ड नोन एज ब्यूबो. ब्यूबो का मतलब होता है lymph nodes. You know that there are certain traffic police of the immune system throughout our body. पूरे body में बहुत सारे lymph nodes होते हैं. तो basically in the case of the bubonic plagues, the lymph nodes of the armpit or the groin, वो क्या हो जाते हैं, वो swelled हो जाते हैं. और उसी को the swelling of the lymph node is known as bubo. What is bubo? It's the swelling of the lymph node. Okay, it's the swelling of the lymph node. उसी को हम ब्यूबो बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है. ब्यूबो क्या है? इट्स एन enlarged lymph node that is tender and painful. ये टेंडर भी होता है, बहुत ऐसे
पॉइंटेड जैसा दिखेगा और पस भरे हुए होते हैं, एंड इट्स पेनफुल, इट्स टेंडर एंड पेनफुल. तो व्हाट इज बेसिकली दिस bubo is nothing but it's an enlarged lymph node of groin और armpit. बेसिकली इधर देखने के लिए मिलते हैं. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन whether bubonic plague is a contagious disease or a non-contagious disease. क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इट्स बीइंग ट्रांसमिटेड और द इन्फेक्शन इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द एयर, वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड, और एक ऑप्शन होगा रैट फ्ली. तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये हमारे बॉडी में कैसे एंटर करता है, थ्रू द एनिमल. एंथ्रेक्स भी जो है वो भी एनिमल के थ्रू ही आता है. एंड यस, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज. क्वेश्चन कैसे आते हैं? अ नंबर ऑफ डिजीजेस आर बीइंग रिटन. ABCD आपका जो MCQ का ऑप्शन है, और क्वेश्चन रहेगा या तो फाइंड विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज, या फिर फाइंड द ऑड वन आउट. तो ऐसा हो सकता है कि उसमें 3 वायरल डिजीज हो, 1 बैक्टीरियल डिजीज हो. तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे. बहुत डिटेल में इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर एक एक डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा एक लेक्चर पूरा एक डिजीज के ऊपर लेगा. यस, बट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, एज वेल एज मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये बैक्टीरियल है, वायरल है, हेलमिंथिक डिजीजेस है, या फिर ये प्रोटोजोअन डिजीज है, ये हमें पता होना चाहिए. फ्यू डिजीजेस वी हैव टू रीड इन डिटेल. जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम पैरासिटिक, जब भी हम प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ेंगे, वहां पर मलेरिया हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि पूरा इन्फेक्शन ये 2 होस्ट से कैसे कैरी आउट होता है, कहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, ट्रोफोजोइट्स क्या होते हैं, वो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है. बट ये सब हमें इतना ही जानना है, और इतने से हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे. ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. So here it's the bubonic plague, and it's being caused by Yersinia pestis. Yes, you have to remember the name of the causative organism, that is your Yersinia pestis. Yes, what are the symptoms? It's the high fever hota hai, bubo hota hai, that is an enlarged lymph node, and diagnosis is done by Wesson stain test. Diagnosis भी आपसे कोई प्लेग का नहीं पूछने वाला है. ठीक है? इन्फेक्शन कैसे होता है? इट्स बैक्टीरिया आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रैट फ्ली टू मैन. एंटी प्लेग वैक्सीनेशन इज ऑल्सो अवेलेबल है, हमारे पास एंटी प्लेग वैक्सीन अवेलेबल. द नेक्स्ट वन इज योर गोनेरिया. यहाँ पर भी मैं आपको 2 चीजें बताना, स्पेसिफाई करना और डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पहले मैं कर देती हूँ, तब मैं गोनोरिया के बारे में बताऊंगी. यस, यू ऑल मस्ट बी अवेयर दैट गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड यस, syphilis is also a sexually transmitted disease. इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बट दोनों में मेजर डिफरेंस है. तो ये जो डिफरेंस है और जो ये एक्सेप्शंस है, वो आपको अच्छे से रिमेम्बर करना है और याद रखना है. ठीक है? सो वन इज योर गोनोरिया, and the other one is your syphilis. Gonorrhea is a bacterial infection. ये बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है. Gonorrhea is a bacterial infection, but your syphilis is not a bacterial infection. It's being caused by the sporochids. ये आपको रिमेम्बर करना है. Although both are sexually transmitted disease, but your gonorrhea is a bacterial infection caused by the bacteria, but your syphilis is not a bacterial disease. It's a sporochids disease. It's a sporochids disease which is caused by Treponema pallidum. ये भी आपको याद रखना है. ट्रिपोनेमा पैलिडियम. सो व्हाट इज स्पोरोचिड्स? ये क्या होते हैं? ये कैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ से डिफरेंट है? एनीवन कभी ये नाम सुना है? No, ma'am. नहीं सुना. ओके, आई विल एक्सप्लेन.
इट्स बेसिकली ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो हमारा सिफिलिस विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ट्विस्टेड लॉन्ग एक्सिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। अगर मैं बोलूं तो जैसे हमारे वॉर्म्स वगैरह होते हैं ना वैसे ही, बट हाईली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर लॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा होता है सिफिलिस। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, ट्विस्टेड अराउंड द लॉन्ग एक्सिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके बहुत सारे फिब्रिल्स होते हैं, फिब्रिल्स दैट एक्सटेंड्स बिटवीन द सेल वॉल एंड द साइटोप्लाज्म। जैसे हम साइटोप्लाज्मिक फिब्रिल्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम सेल पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वो ऐसे फाइबर्स की जैसे दिखते हैं। तो जस्ट लाइक दैट ये जो हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लॉन्ग होता है, ट्विस्टेड होता है, एंड बेसिकली हाउ वी कैरेक्टराइज इट, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ वेरिंग नंबर ऑफ फिब्रिल्स बिटवीन द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे वेरिंग डिग्री ऑफ फिब्रिल्स होते हैं। एंड यस, इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज हाईली ट्विस्टेड एंड लॉन्ग इन। मैं इधर रब करके लिखती हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट, लेट मी रब योर spinal they are twisted long axis microorganism, long axis microorganism। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि अगर मैंने गोनोरिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ा है तो सिफिलिस वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होगा। नो, नॉट। और ये इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको टेटनस और स्नेक बाइट को भी अलग करके पढ़ाया, ठीक है? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ varying degree of fibrils between cell wall and cytoplasmic membrane. And it causes the disease which is your syphilis, and the causative organism of the syphilis is Treponema pallidum. Okay, so your gonorrhea, it's a bacterial disease जो भी हम पढ़ रहे थे, and it's caused by Neisseria gonorrhea, but your syphilis is being caused by the Treponema pallidum. Okay, now again I will share the screen. Yes, so here you can see gonorrhea, and it's being caused by the Neisseria gonorrhea, named after the scientist. In male, the disease starts as an acute inflammation of urethra. So here comes the question, what is inflammation? मैं बताती हूँ what is inflammation, but first let us see what are the symptoms. Yes, in the male it's an acute inflammation of the urethra which leads to painful urination and discharge of pus from the penis in case of severe infection. Yes, in females the symptoms are abdominal discomfort, vaginal discharge, abnormal uterine bleeding, pelvic inflammation, and sterility. It's a STD, that is your sexually transmitted disease, and it's spread through sexual contacts. No vaccine is available. Here comes a term inflammation, जो ऑलरेडी मैं जब इम्यूनाइजेशन ये इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगी वहां पर भी ये वर्ड आएगा. तो एनी वन ऑफ यू,
What is inflammation? Vasodilation. Yes, a little bit louder, not able to. Vasodilation. You can also write in the chat box. Anyone else? Priya ने लिखा है swelling. Yes, anyone else? Why swelling? If it's a swelling, then why? Normally तो नहीं होता है, कभी कभी होता है. Yes, inflammation leads to swelling, inflammation leads to pain, painful swelling होता है inflammation में, redness हो जाती है. But why? Inflammation जैसे हम कहते हैं ना कि increase in interstitial fluid, ये आयुष ने लिखा है. Yes. So basically, when a foreign particle enters our body, कोई भी antigen body में enter करता है, तो yes, we have our immune system, बहुत सारे check points हैं, वो उनको check करते हैं, और जैसे ही infection होता है, और फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे बहुत ज्यादा दंगा वंगा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स वहां पर भेजते हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन. तो उसी तरह से अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा वाइट WBC सेल्स जो होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं उनको एक्टिवली सेंड करती है एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग होगी. तो व्हाई? बिकॉज हमारा जो ब्लड वेसल्स है जो वहां पर ल्यूकोसाइड जाते हैं, WBC को कैरी करके ला रहा है, वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन्स को कैरी करके ला रहा है टू act upon that particular pathogen that is present over there. तो उसको कैरी करने के लिए क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े से इनलार्ज होते हैं, और इनलार्ज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, दैट इज योर स्वेलिंग एंड पेनफुल होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है. तो यू कैन से इट्स अ sign that something is wrong inside my body and my immune system is actively acting against that particular situation, and because of that only inflammation. Yes, Yash Patil, you are absolutely correct. Inflammation is the body's immune system response to an irritant. Yes, it's an irritant. Yes, interstitial fluid भी होगा क्योंकि मैंने बोला प्लाज्मा प्रोटीन्स चाहिए वर्क करने के लिए. तो एट दैट पर्टिकुलर प्लेस वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो करके जाते हैं टू मैम प्लीज रिपीट again what you tell, as I was disconnected. Okay, so actually inflammation is just an outcome that my immune system is working. Whenever there is any irritant, whenever there is any pathogens that enter our body and are present at a particular place. अभी तो मैं ऐसे डायरेक्टली बता रही हूँ कि एंटर कर रहा है, बट अभी इसी चैप्टर में हम जब अच्छे से पढ़ने वाले इम्यून सिस्टम, तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है. मतलब अलग अलग तरह, पहले कांस्टेबल आ गए, फिर उसके ऊपर के हायर पुलिस ऑफिसर्स ने उसको टैकल करने की कोशिश की, उनसे भी नहीं हुआ तो उसके ऊपर के. तो ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम ने भी बहुत सारे ऐसे लेयर्स बना के रखे. ठीक है, पहले तुम देख लेना, अरे तुमसे नहीं हुआ, देन सेकेंड वाला देखेगा, उससे भी नहीं हुआ, फिर फाइनल जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे टी सेल्स हैं, वो एक्टिव होते हैं और वो चीजों को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो जस्ट लाइक दैट इन्फ्लामेशन इज जस्ट एन आउटकम कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है दैट पर्टिकुलर प्लेस के लिए. योर ब्लड वेसल इज कैरिंग द WBCs as well as the plasma protein to that particular place, and because of that only the blood vessels enlarges a little bit, that leads to swelling, that leads to pain, that leads to tenderness, that leads to redness at that particular place. So these are the outcomes of your immune system जब भी इन्फेक्शन होता है. तो वही अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि when we are talking about the gonorrhea, तो there is an inflammation in the urethra जिसकी वजह से painful urine pass होता है. Sometimes बहुत severe infection होता है तो पस भी होता है. The same in the female, in the vaginal discharge होता है, वहाँ पर sterility भी cause हो जाती है, and it's basically being transmitted through the sexual contact because it's a sexually contacted disease. These two are sexually being transmitted diseases, इसको हम STD भी बोलते हैं. Okay, तो this is all about our bacterial infection. Bacteria में हमें यही सारे human diseases पढ़ने हैं. After bacteria, the other most important aspects that we have to deal with is the virus. Anyone wants to ask anything?
मैम व्हाट ऑल डू वी हैव टू नोट, ये वेदांत ने पूछा है। ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई वो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूंगी, तो आपको वो पूरा पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से डिजीजेस है। आपको बस वही देखना है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है, सिम्टम्स थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, और कैसे वो पास ऑन होता है। वो फीकल ओरल रूट से होता है इन्फेक्शन, या फिर इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, या फिर स्किन को इफेक्ट करता है, तो वो तो मैं आपको चार्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। एंड ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको टेटनस के लिए बताया, स्नेक बाइट के लिए बताया, फिर मैंने आपको स्पाइरोचेट्स बताया, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो दिस यू हैव टू नोट। यस, आई विल डेफिनेटली शेयर द चार्ट विद यू ऑल। ओके, just pardon me for a minute, let me rub the board and then I will start the viral disease. So now after the bacterial diseases, human bacterial diseases, we will talk about the viral diseases. वायरल डिजीज में अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी ने सिर्फ कॉमन कोल्ड को डिस्कस किया है, बट ऐसा नहीं है कि आपसे एग्जाम में जो है नीट के एग्जाम में सिर्फ वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड पूछा जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो वायरल डिजीजेस हैं और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल पोलियो से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल रेबीज से क्वेश्चंस आते हैं। तो वी हैव टू रीड देम इन लिटिल बिट डिटेल्स। हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, हाउ दे एंटर आवर बॉडी एंड हाउ दे इन्फेक्ट अस। तो फर्स्ट वायरल disease that we will read is your polio. You all must be aware of polio. Polio is a viral disease or it's a bacterial disease? What is polio? Polio क्या है? Polio is a viral disease. Most common viral disease. बहुत परेशान किया है throughout the world पोलियो ने, बट नाउ वी हैव कंप्लीटली बोल सकते हैं अब कि वी कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो चुका है ये पोलियो, because of the vaccination drive that is being carried out by the various countries of the world, और इनफैक्ट इंडिया से भी अभी बहुत ज्यादा ये एलिमिनेट हो चुका है, केसेस देखने के लिए नहीं मिलते। तो बेसिकली पोलियो का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो यस, दिस पोलियो इज कॉज्ड बाय द पोलियो virus, that is your enterovirus. Polio is caused by enterovirus, that is your polio virus. Your polio virus also enters our body through the oral fecal route. Oral fecal route से ही enter करता है and it goes in the gut. गट में जाता है, इंटेस्टिनल गट में जाता है, वहां पे वो डिवाइड करता है एंड इन सीवियर केसेस गट से थ्रू द ब्लड इट रीचेस टू द ब्रेन। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली बहुत ही कैसे बोलते हैं, इन्फेंट्स में, चाइल्ड्स में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता था ये डिजीज। और स्प्रेड तो ये ओरल फीकल रूट से ही होता है। इट्स बेसिकली लीड्स टू द स्टिफनेस इन द नेक और द वीकनेस ऑफ द बोन्स। बेसिकली लेग्स के बोन्स को वीक करता है। अगर आपने किसी भी पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन को देखा होगा तो यू कैन इजिली एनालाइज। तो बेसिकली व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मोड ऑफ transmission, it's through the oral fecal route. Oral fecal route से through contaminated food and water से it goes to the gut, and from the gut through the blood it reaches to the central nervous system. हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है एंड अल्टीमेटली इट्स लीड्स टू द स्टिफनेस ऑफ द नेक और द वीकनेस ऑफ द बोन्स। स्टिफनेस ऑफ नेक, weakness
bones. Every time this polio infection is not that much severe कि ये ऐसा कुछ इफेक्ट करे जो हमें विजिबल हो. If the infection is normal, बहुत थोड़ा है, तो ये वायरल इन्फेक्शन के जैसा दिखता है. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा फीवर आता है, 2-3 दिन के लिए प्रॉब्लम होती है विद इन अ वीक के लिए, बट ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज बोन्स को इफेक्ट नहीं करता है. अल्टीमेटली अगर ये बोन्स को इफेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इफेक्टिंग द स्केलेटल मसल्स ऑफ आवर बॉडी. कौन से मसल्स को इफेक्ट करेगा? Ultimately it affects the skeletal muscles. But as कभी कभी बोर्ड पे लिखने में ना ऐसे स्पेलिंग्स आधी ही रह जाती है. skeletal muscles. तो एक्चुअली एवरी केस अगर पोलियो का वायरस बॉडी में एंटर कर गया है तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे बोन्स को वीक करेगा, लेग्स को पैरालाइज करेगा. यस, द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द पोलियो इज योर पैरालिसिस आल्सो. पैरालिसिस ही है. तभी आपने देखा होगा किसी भी पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन को कि उसके लेग्स जो बहुत होते हैं वो थिन से ऐसे दिखते हैं. इज इट? देखा है? Yes, ma'am. यस, तो बेसिकली ये पैरालिसिस अटैक भी कॉज करता है. दैट मीन्स इट इज इफेक्टिंग योर स्केलेटल मसल्स. बट अगर इन्फेक्शन थोड़ा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है, तो इट जस्ट लाइक द फ्लू. थोड़े से फीवर आते हैं, हेडेक होता है, और विद इन अ वीक और 10 years पर्सन उससे रिकवर हो जाता है. बट इफ द इन्फेक्शन इज severe, then it leads to the infection in the skeletal muscle, that is your weakening of the bones. इसके attack of paralysis जो होते हैं वो begin होते हैं with high fever, headache, chills, मतलब थोड़ी ठंड लगती है, pain होता है, pain in the muscles, pain in the bones, joints में pain हो सकता है. तो these are the basic symptoms जो सारे disease के more or less सेम ही है. यहाँ पर भी वही सारी चीजें, अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो फीवर से ही स्टार्ट होगा. तभी क्या होता था पहले के टाइम में, जब भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, पोलियो के वैक्सीनेशंस तो लोग लेते थे, बट वो ओरल वैक्सीन है, बट अभी इंट्रामस्कुलर दोनों ही मिलने लगे. ओरल वैक्सीनेशन इज देयर, बट समहाउ क्या होता था कि लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, और जब भी हल्की सी फीवर हो रही है, पेन हो रहा है, तो इतना उसको सीरियसली समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली इट्स अ पोलियो इन्फेक्शन. जब भी बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता था तब लोग देखते थे, अरे नहीं, इसके बोन्स जो है वो थोड़े वीक हैं, इसका पैर पूरा अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है. तो अगर उस टाइम पे ही क्योंकि सिम्टम्स जो है वो मोर और लेस सेम है, बच्चों को ऐसे ही थोड़े बहुत फीवर वगैरह आते हैं, इट्स अ सिंपल वायरल इन्फेक्शन आल्सो, बट सिम्टम्स इज सेम. किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम, फीवर मतलब क्या होता है हमारा बॉडी में? क्या एक्चुअली फीवर इज नॉट अ डिजीज. फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम to show that something is going inside your body. Something is going inside your body. जब भी कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंसर की बात करते हैं, एड्स की बात करते हैं, बहुत ही ड्रेडली डिजीजेस है, उनके सिम्टम्स भी जो है ना वो नॉर्मल फीवर से ही स्टार्ट होता है. इज इट सो? एड्स वाले बंदे को भी फीवर होता है. तो फीवर से हम ये नहीं कह सकते कि फीवर इज अ डिजीज. इट्स अ सिम्टम टू जस्ट सो दैट something is wrong inside your body, some foreign particles, some irritants enter your body and your immune system is active. अभी जब आप वैक्सीनेशन लेके आते हो तो भी अगर आपके अंदर का इम्यून सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करता है तो भी बहुत सारे लोगों को फीवर आते हैं. तो it's also a good sign that your system is working. If a child is infected by polio and he have weakness in leg bones, so can't walk, but do he can walk again? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बोन्स पूरे अच्छी तरीके से ठीक हो जाएं. yes, अभी साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हो चुके हैं, तो उनके लिए स्पेशल कैटेगरीज के शूज़ वगैरह आते हैं. वो क्या बोलते हैं, स्टील के लेग्स भी लगते हैं. और नॉर्मली अगर आपको पता नहीं है कि ये बंदा और ये बंदी इन्फेक्टेड है तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसको ऐसा कुछ पोलियो इन्फेक्शन है. एक्चुअली नाउ डेज दे कैन ऑल्सो ड्राइव, कार वगैरह सब ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उसी तरह से बनाए गए हैं, उसी तरीके के आपको
जो ये स्कूटीज वगैरह होते हैं, सब कुछ मिलते हैं, तो दे आर living their life just like a normal human beings, but yes, one of their leg is still thinner as compared to the other one. एक जो होता है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, बट हम उसको फिर से, अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया, उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया, हमारे बोन्स को वीक किया, तो दोबारा वो रिकवर नहीं हो सकता है. जस्ट अ मिनट. यस, एक्चुअली मेरे डॉटर की भी क्लास चलते रहती है, तो उसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मम्मा मम्मा शुरू हो जाती है, वही मैं देखने गई थी. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. यस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलियो. यस, पोलियो के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, एंड द नेम ऑफ द वैक्सीन फॉर द पोलियो इज योर, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. यस, पोलियो. what is the name of the vaccine that is available for the polio? That is your Salk vaccine. पढ़ा होगा, भूल गए 9th 10th में. Is it? Salk vaccine is the vaccine. किसने तो BCG लिखा है? Oh, BCG is for tuberculosis. Yes. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज ऐसे मिस्टेक्स मत करो. BCG is for tuberculosis and for the polio the vaccine is your Salk vaccine. ये जो सबसे पहले Salk वैक्सीन डेवलप हुआ था टू डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट द पोलियो, बट जो आप ओरल वैक्सीन लेते हो, ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हो, वो जो ओरल पोलर वैक्सीन्स थे वो सैबिन एटाल ने बनाया था. सैबिन एटाल वाज अ एटाल. जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना साइंटिस्ट के नाम के साथ, तो वो अकेला नहीं होता है, उसके बहुत सारे को वर्कर्स होते हैं जो साथ में मिलके काम करते हैं. एटाल करके लिखते हैं लाइक दिस, Sabin et al. That means a number of other co-researchers are also worked along with the Sabin in order to prepare the oral vaccine, that is your oral polio vaccine. ठीक है? और ये जो Salk वैक्सीन है ये इंजेक्ट किया जाता है. It's injected. It's the killed vaccine. बट योर सैबिन एट al ने जो सैबिन वैक्सीन बनाया था, दैट इज योर ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV. नाउअडेज जब गवर्नमेंट ने ड्राइव स्टार्ट किए तो वो हमें ओरल पोलियो वैक्सीन हर किसी को दी जाती है. बट नाउअडेज, बट अगर आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज में, दे ऑल्सो गो फॉर द Salk वैक्सीन, दैट इज योर इंजेक्टेड. वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करके दी जाती है. अभी इंडिया में भी इट्स एन ऑप्शन. जब भी आप विजिट करते हो किसी भी पेडिट्रिशियन के वहां पर, तो दे रिकमेंड कि ओरल पोलियो वैक्सीन तो आप लेते ही हैं, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड टू टेक द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर द वैक्सीन ऑल्सो. यस, मैंने अपनी डॉटर को ये दोनों ही चीजें दी हैं बिकॉज दिस इज स्टिल मोर इफेक्टिव. जो आप इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मस्कुलर इंजेक्शंस देके वैक्सीनेशन देते हो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव. ओरल भी है क्योंकि देयर आर डिफरेंट मोड. जब भी हम वैक्सीनेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे, पता नहीं आपके में है या नहीं, कि व्हाई देयर आर डिफरेंट मोड्स. क्यों हम कुछ वैक्सीनेशन जो है वो ओरली देते हैं, कुछ इंट्रावेनस देते हैं, कुछ इंट्रामस्कुलर देते हैं. तो देयर इज ऑल्सो सर्टेन डिफरेंसेस. Yes, Vedant, you want to say something, bacha? You are unmuted. Vedant, can you speak a little louder, bacha? Because I'm not able to hear you. Ma'am, can you hear me?
Yeah, now I can hear you. Ma'am, some vaccines are proteins, so they can be digested by the body. So they are Yes, injected. yes, definitely. There are various reasons apart from this. Okay. So this is all about your polio. You have to remember the name of the vaccine. Confuse nahi hona hai. BCG is for tuberculosis, DPT is for diphtheria, pertussis and tetanus, and your Salk vaccine is for पोलियो, ओके, विच इज एन एंटेरिक वायरस जो होता है पोलियो वायरस, उसके लिए हम इसको बोलते हैं. नाउ द अदर इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज दैट वी हैव टू डिस्कस इज योर रेबीज. इसका एक और नाम है. व्हाट इज रेबीज को और क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया. सुना है कभी? Yes, ma'am. फोबिया. व्हाट इज फोबिया? डर लगना. डर लगना. हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगता है. ऐसा क्यों? बिकॉज दिस डिजीज इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बाइट ऑफ द एनिमल्स. मैड डॉग हो सकता है, वुल्फ्स हो सकते हैं, कैट्स हो सकते हैं. दे आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स बाय द बाइट ऑफ द डॉग, कैट्स, वुल्फ्स, जैकल्स. इनके बाइट से ट्रांसमिट हो सकता है. बट हाउ इट्स रिलेटेड टू कि इट डेवलप्स अ फोबिया अगेंस्ट वाटर? इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि वो बंदा जो इन्फेक्टेड है वो अपने सलाइवा को भी ऐसे नहीं करता है. इतना ज्यादा पेन होता है और जिसकी वजह से इट डेवलप्स अ फोबिया अगेंस्ट द वाटर. इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. And this virus is introduced in our body by the bite of mad dogs. जैकल से, वुल्फ से, कैट से, किसी से भी हो सकता है. Fear of water is the most important characteristic of this disease. That is your rabies, and it's being transmitted through the pathogen that is your rabies virus. और इसका सबसे important characteristic है इस disease का कि क्या है? Fear of water. इसमें क्या होता है? सलाइवा भी वो ऐसे अंदर बॉडी के अंदर नहीं ले सकता है. बहुत ज्यादा पेन होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है. तो दीज आर द सलाइवा फ्रॉम द माउथ हमेशा ऐसे निकलते रहेगा क्योंकि वो उसको इंजेस्ट ही नहीं कर सकता है. सलाइवा ऐसे आपको इधर से निकलते हुए दिखेगा. हेडेक होता है, फीवर होता है. तो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. बट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होता है फियर फ्रॉम वाटर. रेबीज वायरस and it leads to fear of water, and that's why this rabies is also known as hydrophobia कि water के against phobia develop हो जाता है. Inability to swallow even the fluid. अगर वो fluid को ही swallow नहीं कर सकता है, saliva को ही swallow नहीं कर सकता है क्योंकि इतना ज्यादा painful होता है, तो how he or she can be able to ingest or swallow the food. तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाते हैं. रेबीज इज 100% fatal. What does it exactly means? Rabies is 100% fatal. What do you mean by fatal? Rabies is 100% fatal. Ultimate death. Okay. So how can we control this disease? ये एनिमल के बाइट से ट्रांसफर हो रहा है, मैड डॉग से, कैट से, वुल्फ से. तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Yes, Sanskruti, absolutely correct. Control कर सकते हैं by immunizing the various street dogs as well as the pets जो हम अपने घरों पे रखते हैं. If a dog bites an animal, तो हमें पता नहीं होता है कि whether the dog is suffering from this rabies virus or not. तो we have to keep the patient as well as the dog under observation for 10 to 15 days in order to see the symptoms. क्योंकि we are not aware कि अगर किसी street dog ने bite किया है तो क्या हो सकता है. तो रेबीज वायरस उस पेट के अंदर है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पेट को भी थोड़ा अंदर ऑब्जर्वेशन रहते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू प्रॉपर इम्यूनाइज और प्रॉपर वैक्सीनेट द पेट्स also.
So it's the rabies. Out after this rabies, one of the most important viral human disease is your hepatitis that we have to read in detail. Okay, just a minute, let me rub the board. Ma'am, please share the image of board. ऐसा तो कुछ बोर्ड पे लिखा नहीं है बच्चा, इतना भी नोट नहीं किया आप लोगों ने. That's not good. Try to note it, important. So the other viral disease that we have to read in detail is your hepatitis. अगर जनरल टर्म में बोलो कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन है किसी को भी, तो वो इसको बोलते हैं अच्छा जॉन्डिस हो गया है. सुना है ऐसा लोगों को बोलते? Yes, ma'am. जनरल टर्म. Yes, ma'am. तो ये हेपेटाइटिस जो हमारा वायरल इन्फेक्शन है, इसको कॉमन टर्म में हम इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं. हेपेटाइटिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स के हैं. यहाँ पर A B C D E, सिर्फ F नहीं है, फिर G भी आता है. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E. F नहीं आता है, हेपेटाइटिस G भी होता है. अभी रिसेंटली पता चला है कि हेपेटाइटिस G भी होता है. सिर्फ F नहीं होता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, F नहीं है. ओके. All these different type of hepatitis is being caused by different virus. Hepatitis virus A, hepatitis virus B, hepatitis virus C, hepatitis virus D, hepatitis virus E, hepatitis virus G. ऐसे याद करोगे तो easily remember होगा. सब अलग अलग है. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस. सारे वायरस में कुछ ना कुछ डिफरेंट है. देयर मोड ऑफ एंट्री में, देयर मोड ऑफ इन्फेक्शन में, उनके जो चेन है, सीक्वेंसेस है, उसमें डिफरेंस है. इसी वजह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कॉज करता है. जब भी हम हेपेटाइटिस में HIV, हेपेटाइटिस A वायरस ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखता है. मैंने हेपेटाइटिस वायरस A करके लिखा है. हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस ऐसे लिखो तो तुम्हें याद करने में या फिर रिमेम्बर करने में ज्यादा इजी रहेगा. जस्ट हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस D. Now here comes कि इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है. लिसन केयरफुली. एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, all the viruses have RNA as a genetic material except hepatitis B. तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म. बट अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जिसका न्यूक्लिक एसिड DNA होता है, और जितने हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो RNA होता है. दिस इज RNA, दिस इज RNA, दिस इज RNA, दिस इज RNA. ठीक है. जी के बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. ओके. तो न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस है, सारे RNA है, सिर्फ हेपेटाइटिस बी जो है वो DNA है. हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है. चिल्ड्रंस को भी मिलते हैं, एडल्ट्स को भी मिलते हैं. और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन बनाया गया है दैट इज थ्रू जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन है. और ये जो वैक्सीन है वो यीस्ट में बनाया गया है. ये हमारे किसी चैप्टर में NCERT में भी डिस्कस है. जस्ट डोंट रिमेम्बर कि किस चैप्टर में है, शायद कहीं तो है.
हाँ, किसी में तो है। तो योर हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन डेवलप हुआ है, दैट इज थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स बीन डेवलप्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन है एंड इट्स बीइंग डेवलप्ड इन द यीस्ट। ये आपको याद रखना है। नाउ मोड ऑफ एंट्री, मोड ऑफ एंट्री, योर हेपेटाइटिस ए एंड योर हेपेटाइटिस ई, दोनों बोर्ड पे ये लिखने का मतलब है कि आप यहाँ पे पूरा कंसंट्रेट करो। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दोनों थ्रू फीकल ओरल रूट एंटर करते हैं हमारे बॉडी में। फीकल ओरल रूट, hepatitis A as well as hepatitis E, it also enters through fecal oral route. But all other B, C and D, ये जो है they enter through parenteral. Parenteral एक वर्ड आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिल सकता है, parenteral। इसका मतलब है कि गट के थ्रू नहीं, हमारे माउथ के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नहीं। ये कैसे एंटर करेगा? पेरेंटेलर का मतलब है थ्रू द ब्लड, थ्रू द यूज्ड सिरिंजेस एंड ऑल। ये ब्लड के थ्रू एंटर करता है, ये भी पेरेंटेरल है और ये भी पेरेंटेरल है। दैट मीन्स थ्रू द ब्लड। Now here is one important twist. Hepatitis D कभी भी alone cause नहीं होता है, alone cause नहीं होता है। Hepatitis D develop along with hepatitis B. Hepatitis B के साथ ही हमारा hepatitis D जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। और जो वैक्सीन हम हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में देते हैं, वही वैक्सीन हम हेपेटाइटिस डी के ट्रीटमेंट में भी देते हैं। इट ऑलवेज अकर्स, अगर क्वेश्चन हो तो यस, हेपेटाइटिस डी ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेशन विथ हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, विच हेपेटाइटिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अनदर हेपेटाइटिस। तो योर हेपेटाइटिस डी जो है वो ऑल अलोन कभी नहीं होता है, इट्स अ co-infection with hepatitis B. It comes as a co-infection with hepatitis B, ठीक है। हेपेटाइटिस डी हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही डेवलप होगा। नाउ सिम्टम्स जो है वो मोर और लेस सबके सेम हैं। फीवर आता है, हेडेक होता है। अगर ये फीकल ओरल रूट से एंटर कर रहा है तो ये आपके जो गट सिस्टम है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, उसको डिस्टर्ब करता है एंड यस अल्टीमेटली लीड्स टू जॉन्डिस। जॉन्डिस दैट मीन्स जॉन्डिस के सिम्टम्स लोग ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा जॉन्डिस सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो यू कैन ऑब्जर्व इट इन द नेल्स। नेल्स के आउटर साइड्स को देख के भी आप बता सकते हो। आईज के नीचे ऐसे येलोइश हो जाते हैं, आप उसको देख के बता सकते हो येस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस एंड द कंडीशन इज सीवियर, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड भी सबके डिफरेंट है, वो हमें नहीं जानना है, बट यस वैक्सीनेशन इज अवेलेबल। हेपेटाइटिस ए के लिए भी हमारे पास वैक्सीनेशन है, यस डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी के लिए भी है, दैट इज योर जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन। बट हमारे पास हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है। ऐसे लिख देती हूँ, वैक्सीन ए के लिए प्रेजेंट है, बी के लिए भी प्रेजेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें मॉडिफाई किया है यीस्ट में, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस डी के लिए भी है। कौन सा है? जो हम बी में देते हैं वही डी को भी प्रोटेक्ट करता है। और यस हेपेटाइटिस ई के लिए भी वैक्सीनेशन नहीं है, ओके। इसमें से जो भी फीकल ओरल रूट से एंटर कर रहा है, फीकल ओरल रूट से, दैट इज योर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई।
ये दोनों जो है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होता है, बट यस जो हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी में एंटर हो रहा है, दैट इज योर बी, सी एंड डी, डेफिनेटली दे आर द क्रॉनिक हेपेटाइटिस. नाउअडे नए टेक्निक से, न्यू टेक्निक से डिस्कवर हुआ है कि यस देयर इज हेपेटाइटिस जी ऑल्सो. हेपेटाइटिस ई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस हेपेटाइटिस ई इज वेरी डेंजरस फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज. प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हाई मोर्टेलिटी रेट प्रेग्नेंट लेडी में होती है. और हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है. ये दोनों का एंट्री भी फीकल ओरल रूट से है एंड इट्स डेंजरस टू प्रेग्नेंट लेडीज. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस का पूरा एक चार्ट है मेरे पास जो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी. ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखा है किसी ने तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो यू कैन इजिली गो थ्रू इट. नाउ सम ऑफ द, ये तो कॉन्टेजियस है तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहे हैं, बट हमने पढ़ा था कि जो भी इन्फेक्शन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है, दे नीड अ वेक्टर फॉर देयर ट्रांसमिशन, दे आर नॉन कॉन्टेजियस. और जब भी हम वायरल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम नॉन कॉन्टेजियस इन्फेक्शंस भी पढ़ेंगे, जिसमें हम दो इन्फेक्शन पढ़ने वाले हैं. वन इज योर, जिसमें हम दो इन्फेक्शन पढ़ेंगे. वन इज योर चिकनगुनिया एंड द अदर वन इज योर डेंगू फीवर. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द डेंगू फीवर, क्योंकि जब भी अगर न्यूज चैनल आप देखते होंगे तो हमेशा चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वो हमेशा दिखाते हैं कि संडे ड्राइव को डेंगू से प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू क्लीन द वाटर दैट आर स्टेगनेंट वाटर, बिकॉज दीज डेंगू के मॉस्किटो जो है एडीज मॉस्किटो वो हमेशा क्लीन वाटर में जो है वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे ऑल्सो कॉज द डिजीज ड्यूरिंग द नाइट. तो लेट मी फर्स्ट रब इट एंड देन वी विल मूव टू द चिकनगुनिया एज वेल एज द डेंगू फीवर. नाउ आफ्टर your hepatitis, the another human viral disease that we will read is your chikungunya, which is also known as the joint pain disease, क्योंकि इसमें mostly बहुत ज़्यादा joint में pains होते हैं. चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर ये दोनों के लिए जो है ये ट्रांसमिट होता है. दे बोथ आर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं. मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है कॉज्ड बाय, अगर हम डेंगू फीवर की बात करते हैं, पहले हम डेंगू की बात कर रहे थे क्योंकि चिकनगुनिया कुछ उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. डेंगू फीवर आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है. इस वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया अरविंद केजरीवाल जी का. वो हमेशा डेंगू से प्रिवेंट करने के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए वो अपने घर को हर संडे साफ करते हैं. ठीक है, पानी जितने भी हैं जैसे पॉट्स में है, गमले में है, कूलर में है, उनको निकालना चाहिए. स्टेगनेंट वाटर्स नहीं रखने चाहिए. तो बेसिकली दिस डेंगू फीवर इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज विच इज caused by flavirribovirus. Flavirribovirus. And it's a mosquito-borne disease. Dengue fever is a mosquito-borne disease. Dengue fever is caused by mosquito-borne flavirribovirus. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि जब ये मॉस्किटो दैट इज योर एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जो है वो बाइट करता है किसी हेल्दी ह्यूमन को, तो वो ट्रांसमिट करता है disease by the bite of the Aedes mosquito. How it's being transmitted bite of Aedes mosquito. These mosquito easily divide in a stagnant, clean and clear water. ये dirty water में नहीं, clean water में जो है ये mosquito breed करता है and they also transmit. That means transmit कर रहा है, that means bite करता है. ये mosquito जो होता है वो लोगों को cut करता है, bite करता है during the daytime. ये general saying भी है, लोग कहते भी है कि डेंगू के मच्छर जो है ना वो दिन में काटते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं. Yes, it's absolutely true.
और ये क्लीन वाटर में ही ब्रीड करते हैं, डर्टी वाटर में नहीं करते हैं। तो जो भी क्लीन वाटर है उनको भी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स पे हमें चेंज करते रहना चाहिए। एंड इट्स अ मॉस्किटो ट्रांसफर्ड डिजीज विच इज ट्रांसफर्ड बाय एडीज मॉस्किटो, दैट इज योर एजी एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी, ठीक है, इससे ट्रांसफर करते हैं। डेंगू फीवर में भी बेसिकली हमारा मस्कुलर पेन होता है और बॉडी का जो फ्लूइड कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इसी वजह से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि यू हैव टू टेक द प्रॉपर बेड रेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको इंक्रीज करना है। इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत छोटा होता है, विद इन अ वीक हमें पता चलता है कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग, 3 to 8 days या 3 to 7 days हम बोल सकते हैं। बट दिस डेंगू फीवर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक जो होता है वो नॉर्मल होता है, क्लासिक डेंगू फीवर, जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, इजिली रिकवर हो जाते हैं, दैट इज योर क्लासिकल डेंगू। एंड द अदर वन इज योर हेमरेज। हेमरेज वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, फॉर एग्जांपल ब्रेन हेमरेज एंड दिस वर्ड्स। तो सिम्टम्स ऑफ डेंगू हेमरेज फीवर एंड सिम्टम्स ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर, ये दोनों डिफरेंस होते हैं। तो डेंगू फीवर को अगर हम डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर क्लासिकल डेंगू फीवर एंड द अदर वन इज योर डेंगू फीवर। दोनों के सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि दोनों की सीवियरिटी में डिफरेंस है। जब नॉर्मल क्लासिकल डेंगू फीवर होता है तो क्या होगा, डेंगू फीवर में भी हमें क्या होता है, फीवर आता है, हेड में पेन होता है, फ्रंटल हेड पेन होता है, आईज में पेन होता है, मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन होते हैं, किसी किसी को रैशेस भी आते हैं, मस्कुलर पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। बट जब भी हैमरेज डेंगू फीवर होता है, इट इज मच मोर सीवियर। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। जब भी हमारा हैमरेज वर्ड आता है ना, दैट मीन्स योर ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन। ब्लड वेसल जब भी ब्रोक होगा किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर पार्ट का, तो वो ब्लड आएगा। तो जब भी हैमरेज डेंगू फीवर होता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ, गम, स्किन, इनमें ब्लीडिंग हो सकती है। और डिफिकल्टी, क्योंकि ये सीवियर है तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है, लोग बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, काफी टाइम तक उनको बेड रेस्ट लेना पड़ता है। So this is your hemorrhage dengue fever, as the name itself says, hemorrhage का मतलब ही है कि bleeding from nose, mouth, skin, etc. ठीक है, तो दोनों के सिम्टम्स में डिफरेंट है। यस, इट्स कैन बी ट्रीटेड, डेंगू को हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास। नॉर्मल जो मेडिसिन है, पेन को रिलीफ करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स देते हैं, फीवर को डाउन करने के लिए हम पैरासिटामोल देते हैं, एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द वर्ड, एंटीपायरेटिक्स, ये हमेशा फीवर के लिए दिया जाता है, फीवर, टू लोवर द फीवर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है पैरासिटामोल, मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो आपको किसी भी घर में दिख जाएगा। ओके, एंड द अदर वन इज योर एनाल्जेसिक, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बोलते हैं। यस, ये पेन से रिलीफ करने के लिए हम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, डिस्प्रिन, बट दीज आर नॉट गुड मेडिसिन, यू डोंट हैव टू यूज। लोग इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, बट आई रियली रिकमेंड कि इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये मेडिसिन हमें यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, डिस्पिरिन, एस्पिरिन, ये सब बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। यस, अगर बहुत ज्यादा फीवर, यस, तो आप प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं, फ्लूइड्स ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना डाइट बहुत अच्छा कर सकते हैं, ओरल बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, बट मेडिसिन से खुद को प्रिवेंट करना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। यस, एंटीपायरेटिक्स, पैरासिटामोल यू कैन टेक। ठीक है,
सिम्टम्स इस बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ इसका ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है नहीं, तो ये जो सिंपल मेडिसिन है इसी से हम ट्रीट करते हैं डेंगू फीवर के मरीजों को. यस, इट्स टेक टाइम एंड एक्चुअली हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन की बहुत अच्छा तरीका यही है कि जहाँ पर भी स्टेगनेंट क्लीन वाटर हो उसको आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करते रहे, ताकि वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो सके. एज वेल एज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि ये डे टाइम में बाइट करता है, तो अपने आसपास के एरियाज को भी हम क्लीन रख सकते हैं. एज वेल एज हम अगर फुल बॉडी कवर क्लोथ्स पहनेंगे तो भी ये मॉस्किटोज हमें बाइट नहीं कर पाएंगे और इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे. तो ये ऑल अबाउट आवर डेंगू फीवर. डेंगू फीवर है जो कि हमारा फ्लेवी राइबो वायरस कॉज करता है एंड इट्स बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एडीज एजिप्टी. ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जो है यही एक और वायरल डिजीज कॉज करता है, दैट इज योर चिकनगुनिया. ठीक है, ये एडीज मॉस्किटो जो है ये एक और वायरल डिजीज कॉज करता है, दैट इज योर चिकनगुनिया. ठीक है, सेम. और इसको हम जॉइंट पेन डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, फीवर होता है, लेकिन जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है. जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलूं, सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम है जो कैरेक्टरिस्टिक, ये सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको देखने के लिए मिलेगा. बहुत ज्यादा जॉइंट पेन्स होता है, फीवर आएगा आपको, बट जॉइंट पेन अनबियरेबल होता है, बहुत ज्यादा ही होता है. एंड यस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस ओनली कि डेंगू फीवर का जो मॉस्किटो है एडीज इजिप्टी, वही चिकनगुनिया भी कॉज करता है. चिकनगुनिया is also a viral disease of the human and it's caused by the Aedes mosquito. ठीक है, एडीज मॉस्किटो. इसका वायरस क्या है, चिकनगुनिया वायरस, इसके नाम से ही है. जैसे ये डेंगू फीवर का डेंगू वायरस, तो उस डेंगू वायरस का नाम है फ्लेवी राइबो वायरस. बस चिकनगुनिया जो कॉज करता है उसके वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस. ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट द वायरल डिजीजेस. यहाँ पर एक वायरल डिजीज जो बहुत कॉमन है और उसका नाम भी है कॉमन कोल्ड, जो हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, वो है कॉमन कोल्ड. जो है ये भी एक सिंपलेस्ट वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फ्लू है. ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को तो इन्फेक्ट करता है, हमारे नोज को करता है, बट लंग्स को नहीं करता है. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यस, कॉमन कोल्ड जो है वो लंग को इफेक्ट नहीं करता है, बट यस इट इफेक्ट्स द नोज एज वेल एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक. आपको कफ होता है, बहुत ज्यादा नेसल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, जाम, हम कहते हैं ना नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में कि बहुत ज्यादा खराश हो रही है, पूरा जाम हो गया, जैसे नाक बंद हो रहा है. इसका मतलब है कि म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज दिस इन्फेक्शन इज ऑल्सो being carried by the droplets, aerosols. या फिर अगर घर में किसी एक को कॉमन कोल्ड होता है तो धीरे धीरे सबको होता है. स्कूल में अगर एक बच्चे को हुआ तो उसके आजू बाजू बैठने वाले हैंकी यूज कर रहे हैं, पेंसिल यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से भी ये कैरी ऑन हो सकता है और पास ऑन होता है और इजिली स्प्रेडेबल है, एक दूसरे से इजिली स्प्रेड हो जाता है. तो हमारे बुक में, हमारे एनसीईआरटी में कॉमन कोल्ड के बारे में ही दिया हुआ है, दैट इज ऑन योर पेज नंबर 147. और कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, जिस ग्रुप का, उसी ने पैंडेमिक क्रिएट करके पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हुआ है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस? Rhinovirus. Yes, the SARS diseases. Yes, Shayus, absolutely correct. The SARS diseases, that is severe acute respiratory syndrome. इनके इसका जो वायरस है राइनोवायरस, वही कॉमन कोल्ड भी कॉज करता है और वही ये पैंडेमिक का रीजन है. दैट इज योर कोरोना वायरस. दैट इज अ रेट्रोवायरस, आरएनए कंटेनिंग वायरस है, बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द rhinovirus. But yes, your coronavirus infects your respiratory tract भी करता है as well as lungs को भी infect करता है, but common cold lungs को नहीं करता है. ये हमेशा याद रखने का. हमारे बुक में सिर्फ वायरस में common cold ही दिया हुआ है. rhinovirus represent one such group of virus. common cold infect करता है, characterized by nasal congestion, discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache and टायर्डनेस. और ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजिंग, ये हमें बचपन से पता है. ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, जैसे पेन, बुक,
कप्स तो इजीली बच्चों में स्कूल में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। कंप्यूटर बोर्ड से हो सकता है, डोर नॉब से हो सकता है। इसी वजह से अभी रिकमेंड किया जाता है हर किसी को कि बार बार अच्छे से हाथ धो, बाहर से आ रहे हैं तो हमने कुछ भी टच किया है वहां से वो वायरस हम कैरी कर सकते हैं जो हमारे बॉडी में एंटर करे। इसलिए फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम में हमें हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए, डिटॉल से अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि along with the droplet infection this coronavirus is also being transmitted through the objects also, doorknob, computer, books, पेजेस। ये जो ऑफिसेज में हम पेज ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे को पास ऑन करते हैं साइन करने के लिए, चेक बुक्स होते हैं, बैंक्स, ये सारे भी इजी सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस हैं। सो वही सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारे कोरोना वायरस के लिए भी, बट वो हमारे लिए ड्रेडली इसलिए हो गया क्योंकि अभी तक हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था। अभी वैक्सीनेशन आ गया, बट मुझे नहीं लगता आप में से भी किसी को लगा होगा, क्योंकि अभी आप 18 इयर्स के नहीं हुए होंगे। इज इट सो? किसी को लगा है क्या वैक्सीनेशन? No, ma'am. नहीं ना? हाँ, अभी अगले साल अगर हाउ पेनिसिलिन इज डिफरेंट फ्रॉम वैक्सीन एंड एंटीसीरम। बच्चा, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन इज नॉट अ वैक्सीन, पेनिसिलिन इज नॉट एन एंटीसीरम, पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। और यहाँ पर एक क्लियर कट आपके माइंड में पिक्चर होना चाहिए कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। Antibiotics are the chemical substances that are released by one microorganisms that inhibit the growth of other microorganism। एक माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही हम एक्सट्रैक्ट करें, जैसे पेनिसिलिन जो है वो हमने पेनिसिलियम विच इज अ फंगस जिससे एक्सट्रैक्ट किया है, और ये जो एंटीबायोटिक है जो फंगस से मिला है वो एक्ट करता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया। सो antibiotics are the chemical substances which are produced in certain microorganisms that inhibit the growth of other microorganisms। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। उनके जो पेट्री प्लेट्स थे जिसपे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर चले गए 2-3 दिनों के लिए और वो ओपन हो गया, एक प्लेट रखने में हो गया होगा, हड़बड़ में कभी होता है। और जब भी वो वापस आए 2-3 डेज में, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, विद इन 24 आवर्स आपकी पूरी पेट्री प्लेट जो होती है जिसमें हम न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं वो कवर हो जाता है विद द ग्रोथ। बट फंगस को ग्रो करने के लिए 3 to 5 डेज लगते हैं। तो आफ्टर 3 to 5 डेज जब वो आए और उन्होंने अपने प्लेट को वॉश करने के लिए निकाला तो उन्होंने देखा यार जिधर पे ये फंगस की ग्रोथ हुई है वहां पर बैक्टीरिया नहीं है। तो उनके माइंड में ये स्ट्राइक हुआ कि ओ देयर इज समथिंग which the fungus is producing which is inhibiting the growth of bacteria, and here how accidentally antibiotics comes into existence। तो antibiotic is your passive immunization। तुरंत अगर हमें रिकवर करना होता है खुद को तो हम रेडीमेड अवेलेबल जो एंटीबायोटिक है ना वो हम खाते हैं, डॉक्टर्स हमें देते हैं। ऑल्दो अगर हम कॉमन कोल्ड के लिए या छोटी मोटी चीजों के लिए मेडिसिन नहीं भी खाएं तो 2-3 दिन में हम खुद से रिकवर हो जाते हैं। आपको कॉमन कोल्ड के लिए कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। योर बॉडी, योर इम्यून सिस्टम इज इनफ, more than enough in order to recover you within 3 or 4 days। but yes, उसको टाइम लगता है। अगर आपने चाहा कि अभी मुझे सर्दी खांसी हुई और 2 मिनट में ठीक हो जाए तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ सिस्टम। वो जानेगा, जागेगा, काम करेगा, तभी तो मम्मा सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है, तभी तो आपको प्लेट पे मिलता है। तो इसी तरह से इम्यून सिस्टम को भी वर्क करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंटीसीरम। ओके, क्लियर? मैम बट अभी अगर Yes, ma'am. खांसी आई तो कुछ और ही लगता है। यार कोई तो कुछ बोल रहा है बट मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्लियरली।